नमस्कार, TV9 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इवनिंग न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। सब तो पहला गल करांगे पंजाब दे जलंधर च लोक सभा जिमनी चोणां होण वालियां ने, लेकिन उस तो पहला ही पंजाब दे साबका मुख मंत्री ते कांग्रेस दे सीनियर लीडर ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ बीजेपी 'ਚ शामिल होने ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਿਆਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ बीजेपी 'ਚ शामिल ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ बीजेपी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਗਰਮ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਵਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੇਂਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੁਝ बीजेपी ਨੇਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਤਰ ਅਫਵਾਹ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ बीजेपी 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। मुझे लगता है कि ये सिर्फ अखबारी खबरें हैं और इस तरह की कोई भी खबर नहीं है। ना पार्टी लेवल पे किसी ने कोई उनके साथ रब्ता किया है, ना ही उनकी ओर से कोई रब्ता हुआ है, और मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई बात है। मुझे लगता है कि ये मीडिया ट्रायल है, इसके अलावा कुछ नहीं। बीते दिनों संगरूर के पिंड नमोल के 3 मजदूरों की नकली शराब पीण दे नाल मौत हो गई सी। इस तो बाद पिंड के दोवां पंचायतां ने नकली शराब और नशे के खिलाफ डट के हमला बोलिया। दोवां पंचायतां वल्लों पिंड के गुरुद्वारे च पिंड के लोकां नूं इकट्ठा किया गया, जिस च पंचायत वल्लों पिंड च नशे जही नकली शराब, स्पिरिट, चिट्टा, समैक अते किसी होर तरह का मैडिकल नशा वेचदा जे कोई भी शख्स फड़िया गया उस उत्ते कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अते जेकर कोई भी शख्स किसी भी नशे वेचण वाले दी पुलिस थाने चो जमानत करवाउंदा है, उसका पिंड च मुकम्मल तौर उत्ते बायकॉट किया जाएगा। तो जेकर कोई भी व्यक्ति नशा नकली शराब वेचण वालियां दी सूचना दिंदा है तो उसका नाम अते पता भी गुप्त रखा जाएगा। इस मामले च पिंड दे सारे समाजिक कमेटियां अते किसान जथेबंदियां इकट्ठियां हो के पिंड दी पंचायत दे पक्ष विच आईयां अते कहा कि पिंड दे वख-वख हिस्सियां च छोटे-छोटे ग्रुप बना के नशे के खिलाफ मुहिम चलाई जाए। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਕੱਠ ਰੱਖੇ, ਦੋਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਤਬਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਦੋਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਜੀ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਪਰੈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈ ਗਈ ਪੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ? ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਗਾ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈਗੀ। ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਕੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਇਸ ਸੰਬੰਧ? ਘਟਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 3 ਵਿਚਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ 3 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪਿਰਿਟ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਫੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਨੱਥ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਰਤੇ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਧਾਮਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਚਿਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮन्वय ਸਮਿਤੀ ਨੇ 1161 ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1052 ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ 109 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 109 ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ, 1052 ਵਿਜੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੇ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਆ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਖਬਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੰਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਨੇ ਸੰਜੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਫੈਜ਼ਾਨ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਫੈਜ਼ਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਦੂਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ 'ਚ ਇੱਕ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਸ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ।
ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਠੱਗੀ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ रुपए ठग लए। ये कल एक कंप्लेन आया था, एक लेडी ने कंप्लेन किया था कि उनके जो हस्बैंड है उसको NRI सिटी में फ्लैट में कुछ लोगों ने बंधक बना रखा है। इस पर तत्काल जो साइबर टीम है चौकी इंचार्ज परिचौक पहुंचे और वहां पे ये पता चला कि एक व्यक्ति है संजय शर्मा जो कि पंजाब अमृतसर के रहने वाले हैं और नोएडा में एक वर्ष पूर्व आए थे यहाँ पे अपने हार्ट का इलाज कराने। वहां पे गार्डन गैलेरिया क्लब में वो एक व्यक्ति जिसका नाम हिमांशु है उससे मिले। हिमांशु ने बताया कि उसके संपर्क में एक बाबा है जिसका नाम फैजान है, मुरादाबाद का रहने वाला है, और विशाल जो भी मुरादाबाद का रहने वाला है। और ये लोग इनके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं, ऐसी ट्रिक्स हैं जिससे आपका इलाज जो है पूरा कर देंगे। उसके बाद ये फैजान से मिले और फैजान ने कुछ ट्रिक्स दिखा के और कुछ ये बता के कि उसके पास कुछ शक्तियां हैं, कुछ तंत्र मंत्र वो जानता है। उससे इनका लगभग 1 साल इस तरह से इनके साथ ठगी करी है और जैसे कि इन्होंने बताया 2 से 3 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन जो है हुआ है, जिसकी जांच करी जा रही है। बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट देखे जा रहे हैं। फिलहाल संजय शर्मा को रेस्क्यू कर लिया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। NCERT की किताबों से मुगल इतिहास हटाए जाने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुगल इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता। साथ ही ये भी कहा कि अगर विपक्षी दलों को भाजपा के खिलाफ चुनाव जीतना है तो उन्हें एकजुट होना होगा। हम तैयार हैं। अगर वो तैयार हैं, हुकूमत तैयार है, फिर रुकावट किस चीज की है? जी किस चीज? ये मैं समझता नहीं। इलेक्शन कमीशन का दौर। देखिए, हमने ये सुना था कि वो आने वाले हैं, मगर उन्होंने इसको डिनाई किया है। उन्होंने कहा अभी हमने कोई ऐसा फैसला नहीं किया है। जी सर, जो मगर तारीख मिट नहीं सकती। आप कितना इसको किताबों से निकालेंगे, शाहजहां को कैसे भूल जाएंगे, औरंगजेब को कैसे भूल जाएंगे, अकबर को कैसे भूल जाएंगे, बाबर को कैसे भूल जाएंगे, हुमायूं को कैसे भूल जाएंगे, जहांगीर को कैसे भूल जाएंगे? 800 साल हुकूमत की है। कभी किसी हिंदू को खतरा नहीं लगा, किसी मुसलमान या सिख ईसाई को खतरा नहीं लगा। ये क्या है? ये क्या तमाशा है? जब ताजमहल दिखाएंगे तो क्या कहेंगे? किसने बनाया? वो कौन था? और यहाँ दफन कौन है? क्या कहेंगे? या फतेहपुर सीकरी जाएंगे जहां इनका पहला तख्त था, राज था, दिल्ली आने से पहले। डेरा सिरसा प्रमुख गुरमीत के मुख्य शिष्य हनीप्रीत से रंगदारी का मामला सामने आया है। पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। विस्तृत जांच के बाद कोई खुलासा करने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि डेरा मुखी की मुंह बोली बेटी और मुख्य शिष्य हनीप्रीत के पास एक फोन आया। हनीप्रीत से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। इसकी सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस ने फौरन जांच शुरू की। ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस ने एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया था। हालांकि पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज अपने सख्त मिजाज के लिए जाने जाते हैं। वो किसी न किसी बयान को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और इस बार फिर अनिल विज सुर्खियों में हैं। शनिवार को अंबाला में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का अलग ही अंदाज देखने को मिला। उन्होंने स्थानीय लोगों और अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ मिलकर रमैया वस्तावैया गाना गाया। इसके लिए उन्होंने बाकायदा फ़ोन में गाने के लिरिक्स खोलकर रखी थी, जिसको देखकर वो गाना गा रहे थे। अनिल विज के सुरक्षाकर्मी और स्थानीय लोगों ने भी तालियां बजाकर उनका साथ दिया। गृह मंत्री का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। रमैया वसावैया, रमैया वसावैया, रमैया वसावैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। ओ रमैया वसावैया, रमैया वसावैया, रमैया वसावैया, रमैया वसावैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। ओ रमैया वसावैया, रमैया वसावैया, नैनों में थी प्यार की रोशनी, तेरी आंखों में वो दुनियादारी न थी, तेरी आंखों में वो दुनियादारी। जम्मू संभाग के लोकप्रिय पर्यटन स्थल सनासर में खिले रंग बिरंगे ट्यूलिप के सुंदर फूल
नैसर्गिक सौंदर्य से भरपूर सनासर के मैदान की सुंदरता में चार चांद लगा रहे हैं। मन लुभाने वाले ट्यूलिप की खूबसूरती को देखने के लिए सैलानी पहुंचने शुरू हो गए हैं और आज को आधिकारिक रूप से सनासर में ट्यूलिप गार्डन का विधिवत उद्घाटन करके आम लोगों के लिए खोल दिया गया। सनासर में पहली बार मार्च 2017 में ट्यूलिप के फूल खिलाए गए थे और इसके साथ ही कूद के हाईलैंड पार्क में भी ट्यूलिप लगाए गए। 2 वर्ष कोरोना महामारी की वजह से ट्यूलिप की खेती प्रभावित रही, मगर सामान्य होते हालात के बीच इस बार उद्योग विभाग ने कूद और सनासर दोनों ही जगह पर ट्यूलिप के फूल लगाए हैं। ट्यूलिप के फूल खिलने के साथ ही सैलानी भी इनको निहारने के लिए सनासर पहुंचने लगे। जम्मू संभाग के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सनासर में अब ट्यूलिप गार्डन लोगों के लिए खोल दिया गया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कश्मीर घाटी में जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन माना जाता था, उसके बाद अब जम्मू संभाग में भी जो सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जम्मू में सनासर में, वहाँ पर अब ट्यूलिप गार्डन जो है वो आम जनता और यहाँ पर पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। विभिन्न किस्म के यहाँ पर जो फूल हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। यहाँ पर तकरीबन 2.75 लाख ट्यूलिप जो हैं वो लगाए गए हैं और वो भी अलग अलग रंगों के, येलो, रेड, पिंक और वाइट, अलग तरीके के यहाँ पर जो ट्यूलिप हैं वो आप साफ तौर पे अपने टीवी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। सनासर की एक खूबसूरत वादियों के बीच जहाँ पर आपको सनासर लेक भी दिख रही होगी, इसी बीच में तकरीबन 40 कनाल की इस जगह पर ये ट्यूलिप गार्डन जो है वो खोल दिया गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से ये पहल इसलिए की गई है ताकि पर्यटन को बूस्ट किया जाए, ख़ास तौर पे जम्मू संभाग में। कश्मीर में भी ट्यूलिप गार्डन है जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन माना जाता है, लेकिन अब जो लोग कश्मीर नहीं जा सकते, जो लोग कश्मीर के बदले जम्मू में ही एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो भी अब ट्यूलिप गार्डन देखने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। जम्मू कश्मीर की मशहूर बशौली चित्रकला को प्रतिष्ठित GI टैग मिला है। इस कला की 17वीं शताब्दी में राज्य के बशौली इलाके से शुरुआत हुई थी। GI टैग एक प्रतीक है जो कि किसी भी उत्पाद को उसके मूल क्षेत्र से जोड़ने के लिए दिया जाता है। जिस उत्पाद को ये टैग मिलता है वो उसकी विशेषता को बताता है। हमारे 30 साल की मेहनत है, उसको जो है ना सरकार ने उसको उस पर जो है एक तरह से मोहर लगा दी है कि नहीं, कार्य जो है वो ठीक तरीके से हो रहा है। उन्होंने देखा भी है। तो इवनिंग न्यूज़ लाइव में फिलहाल इतना ही। अपने राज्य की हर खबर पर नजर बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब करें TV9 का डिजिटल नेटवर्क। नमस्कार।